Good morning, everyone. Now we are heading towards the next chapter. I just now asked whether I'm audible or not. You can't hear me? Harshita, re-log in. Please re-log in. Can you hear me? Okay. Clear है ना अभी आवाज? Good, good. चलो. So our next chapter is marginal costing. The next chapter is marginal costing. Now, what exactly do we do in this? हम लोग करते क्या है? It is a specialized technique of decision making. It is a specialized technique of decision making where all the decisions are taken on the basis of the concept of marginal cost. Where all the decisions are taken on the basis of concept of marginal cost. फिर सवाल ये उठता है कि marginal cost क्या है? I hope you know what is marginal cost. It is cost incurred for an additional unit. So marginal cost means additional cost. Understand the concept. I am dealing with a product. And the capacity of the factory is 10,000 units. I can produce 10,000, but I am producing only 1,000 units. I am producing 1,000. ओके, मैंने मटेरियल पे खर्च किया 1,00,000, लेबर पे खर्च किया 50,000, वेरिएबल ओवरहेड पे खर्च किया अनदर 50,000 एंड फिक्स पे खर्च किया 80,000. ओके, सो total cost for me is 2,80,000. Total sales is 3 lakhs. 20,000 is profit. 20,000 is profit. Am I right? इसका मतलब मटेरियल 100 per unit, लेबर 50 per unit, वेरिएबल ओवरहेड 50 per unit, फिक्स कॉस्ट 80 per unit. I am selling the product for 300. I am selling the product for 300 and the cost is 280. I am getting a profit of 20. Okay. This is what my existing scenario is. Currently, I am producing 1,000 units. 1,000 units बनाने के लिए मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स सभी खर्चे दिए हुए. Now in this scenario, I am getting offer of 100 units. मुझे कस्टमर, मेरे पास आया, कस्टमर आया, मुझे बोलता है 1,000 तू अकेले कैसे अलग अलग मार्केट में बेचता है, एक साथ 100 यूनिट्स चाहिए मुझे, एक साथ खरीदूंगा 100 यूनिट्स, बट आई विल पे यू 250 ओनली. बॉस, मार्केट में बेचूंगा
तो 300 मिलता है. This guy is offering me 250. Should I accept the offer? Yes or no? No? That is a problem. You don't take decision based on face value of the proposal. Whenever you have a proposal, analyze the proposal on completely financial grounds. Let's find out the cost. Let me tell you, if you recollect, for variable cost, we always focus on CPU. For variable cost, we always focus on CPU, but for fixed cost, we always focus on total. So 100 per unit is material cost. So 100 units will cost me 10,000. 50 per unit is labor cost. 100 will cost me 5,000. 50 per unit is variable overheads. 100 will cost me 5,000. So 100 into 100, 50 into 100, another 50 into 100. I'm done with the variable cost structure. What about fixed cost? Do we rely on CPU or total? We generally rely on total. So how much should I write here? It's not going to be 80,000. मेरी बात को ध्यान से सुनो. अगर ये ऑफर में एक्सेप्ट करता हूं 100 यूनिट्स का, अगर ये 100 यूनिट्स का ऑफर में एक्सेप्ट करता हूं तो दैट दोस 100 यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड ओवर एंड अबाउट माय 1000 यूनिट्स. मतलब 1000 यूनिट्स तो बनेगा ही. 1000 यूनिट्स तो बनेगा ही. 100 units will be over and above my 1000 units. So Babu, 80,000 is any which way getting recovered at 1000. Do you think there is an extra fixed cost for those 100 extra units? 100, there is no absolute no additional fixed cost incurred for those 100 units. जैसे I have a classroom having a capacity of 150 students. 100 students are already attending the lecture. That means spare capacity is still 50. One student comes to me and tell me, sir, I want to join, but then I need some discount. So before I tell the discounted fees to this fellow, I will have to first know how much is the cost for me on this one student who is an additional student. Correct? You tell me, do you think I need extra faculty for that one extra student? No. Extra classroom? No. Extra bench? No. Textbooks? Yes. So the only cost that will be incurred on that additional student is? The only cost that will be incurred on that additional student is variable cost, textbook cost. Suppose textbook cost is 2,000 per student. To be very honest, anything beyond 2,000 is acceptable. If the fee structure is 80,000, I'll tell him, okay, pay me 70. Sir, swalpa less, sir. Thoda less, thoda kam karo. Okay, 50,000. He's very happy. He got a huge discount. I am happier than him because I know against that 50,000, I'm going to spend only 2,000. Are you understanding this? So when I talk about additional unit, I should talk about additional cost only. And when I talk about additional cost, let me remind you, you incur only variable cost. So generally, your marginal cost is a variable cost. Your marginal cost is a variable cost. So guys, around 20,000 I will be spending on those 100 additional units. That comes to 200 per student. That comes to 200 per unit. This guy is offering me 250. Sorry. This guy is offering me 250. So 50 rupees ka to abhi bhi profit hai. So what should I do? I should accept the offer. In fact, anything beyond 200 I'll accept. Because the only cost I'll be incurring on those that one additional unit is 200. So even if he would have offered me 201, I would have still said yes. अरे अगर वो 200 भी बोलता तो भी हाँ बोलता, एटलीस्ट मार्केट शेयर तो बढ़ेगा. आज 100 खरीद के जा रहा है, कल उसके वजह से और कस्टमर मिल सकते हैं. Anything below 200 will not be accepted because that will give me a loss. So how did we take the decision? We found out
variable cost, we actually found out the additional cost to be incurred for an additional unit. We actually found out additional cost being incurred for an additional unit, and then we realized that that additional cost to be incurred for an additional unit is only variable cost. So variable cost is marginal cost. Marginal cost means cost incurred for an additional unit, and generally it is variable. So every marginal cost is a variable cost, but every variable cost is not necessarily the marginal cost. Array, every professor including me is a human being. Yes, क्या बोल रहे हैं, पूछ थोड़ी रहा हूं, मैं बता रहा हूं. Every professor including me is a human being, but every human being is not a professor. So if marginal is incurred for an additional, if variable cost is incurred for an additional unit, it becomes a marginal cost. So guys, whenever you say you take decision based on marginal cost, that means you are actually taking decision based on variable cost. But yes, what if the capacity was 1000? What if the capacity was 1000? I am producing 1000, and if I am getting an offer for 100, please let me remind you, there is no spare capacity. 1000 पहले ही बना रहे हो, 1000 का कैपेसिटी है, आई हैव एग्जॉस्टेड द कैपेसिटी, देयर इज नो स्पेयर कैपेसिटी. अब उन 100 यूनिट्स को बनाने के लिए मुझे अगर एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ रहा है, तो दैट विल बी द एक्स्ट्रा कॉस्ट टू बी कंसीडर्ड, एंड इन दैट केस इवन फिक्स कॉस्ट विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. समझ में आ रहा है? तो बेसिकली एक चीज याद रखना, अब तक हम लोग सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट करते थे. अब तक हम लोग सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट करते थे, बट सेल्स माइनस कॉस्ट का मतलब होता है सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. हाँ या ना? पर अब हमको पता चला है कि इसमें से वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों अलग है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मार्जिनल कॉस्टिंग माय एंटायर डिसीजन मेकिंग इज डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल. Since fixed cost is not incurred for any change in the quantity, it is not considered for the purpose of decision making. So in that case, we'll have to rearrange the statement of profit for our comfort. So statement of profit begins with sales minus variable cost. You get contribution. We'll discuss that part later. Contribution is partial profit because some cost is already deducted, but it is not my ultimate profit because fixed cost is yet to be deducted. So contribution will be used, contribution will contribute first towards fixed cost, and if you have surplus contribution, आपके पास अगर contribution fixed cost से ज्यादा है तो आपके पास प्रॉफिट बचेगा, वरना नहीं. तो मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू शुड नो द ब्रेकअप ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल. यू शुड नो ब्रेकअप ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल. आपको समझ में आ रहा है? ऑल योर डिसीजंस आर जनरली टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड. Any doubt here? Okay. So, marginal costing is a specialized technique of decision making. You take your decisions on the basis of variable cost because fixed cost is unaffected. So, अगर आप गौर से देखोगे तो 100, 50 एंड 50 ये तीनों वेरिएबल थे, तो हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली. हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली. सेलिंग प्राइस 250 थी, 250 में से 200 वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, तो एक्चुअली देखा जाए तो 50 इज माय कंट्रीब्यूशन. एक्चुअली देखा जाए तो 50 इज माय कंट्रीब्यूशन. And since 50 is my contribution and since there is no extra fixed cost incurred, 50 itself is my profit. So I took the decision orally. Sales minus variable cost contribution. Contribution itself is my profit because there is no additional fixed cost. समझ में आया? So this is your simple base of your entire marginal costing chapter. Just copy this statement of profit
डोंट कॉपी एनीथिंग एल्स. इज इट डन? एकदम सिंपल कैलकुलेशन है. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन. अब क्या होता है व्हेन यू टॉक अबाउट एन एडिशनल यूनिट, गौर से देखना, व्हेन यू टॉक अबाउट एन एडिशनल यूनिट देयर इज नो एडिशनल फिक्स कॉस्ट. एंड गाइस, इफ देयर इज नो एडिशनल फिक्स कॉस्ट, दैट मींस योर कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट बोथ आर सेम. If your contribution and profit both are same, you can take decision based on contribution itself. So marginal costing का सबसे बड़ा फंडा यही है. You can take your decision based on contribution. There is no need to go till profit. Am I right? Okay. Now, what is the difference between absorption and marginal then? When you actually go for absorption costing, apart from variable, fixed cost is also important for you. You find out absorption rate. Per unit of variable is already available. You calculate per unit of fixed cost by using absorption costing. And then both are added to give you total cost per unit. I hope you recollect this. So when it comes to absorption costing, fixed and variable both are important, but when it comes to marginal costing, we generally take decision on the basis of variable cost only. Okay, discussion भी करना है. We need to discuss all important terms. अब उसके लिए I am taking one simple illustration. उसके लिए I am taking one simple illustration. 5,000 units and per unit is what I have. Selling price 10, variable cost 6. Selling price 10, variable cost 6. Contribution is 4. $15,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस की इधर आएगा प्रॉफिट. आर यू गेटिंग दिस? ओके. So this is this illustration I am taking to explain a few concepts, to revise a few concepts rather. You already know them. हाँ जी, 5,000 यूनिट्स बना के बेच दिया. 10 रुपए के हिसाब से 50,000 सेल्स. 5,000 यूनिट्स बना के बेच दिया तो 6 के हिसाब से 30,000 will be variable cost. 20,000 will be contribution and 5,000 will be profit. This is what we have. Correct? So write down important terms. Give the title, important terms. Give the title, important terms. लिखा? अच्छा, बाय द वे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग का सब फंडा तुमको क्वेश्चन में, ये थियरी में मैंने देके रखा है. यू कैन गो थ्रू दिस लेटर. ओके, राइट डाउन इंपॉर्टेंट टर्म्स. सबसे पहले कंट्रीब्यूशन. Contribution. Write down. It is excess of sales over variable cost. It is excess of sales over variable cost. Contributes first towards fixed cost. याद है? It contributes first towards fixed cost. That is why it is known as contribution. और हमने यही joint product by product के contribution margin method में भी डिस्कस किया था. The term is known as contribution because it contributes towards fixed cost first and then towards profit. अगर आपके पास fixed cost से ज्यादा contribution है तो आपको profit होगा, अगर नहीं है तो loss होगा. So it contributes first towards fixed cost and then towards profit. Correct? Now, whenever you produce an additional unit, for additional unit,
there is no additional fixed cost, and therefore contribution and profit दोनों सेम होंगे. अरे yes or no? That means decisions can be taken based on contribution. Excess of sales over variable cost, it contributes first towards fixed cost and then towards profit. For additional unit, there is no fixed cost, so contribution is equal to profit. Are you getting me? Contribution is equal to profit and decisions can be taken based on contribution. अब देखो contribution कैसे मिल रहा है, देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा. अच्छा, नीचे से ऊपर गए 15,000 प्लस 5,000 करोगे तो भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा. सो गाइस, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. एक फॉर्मूला हुआ. फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दूसरा फॉर्मूला हुआ. और एक तीसरा फॉर्मूला भी है जो मैं बाद में दूंगा, फिलहाल लिखना मत, जगह छोड़ देना. माय फर्स्ट फॉर्मूला इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. माय सेकंड फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. और एक तीसरा भी आएगा जो बाद में डिस्कस करेंगे. करंटली स्किप दैट, जगह छोड़ देना, बाद में लिखेंगे. हैव यू अंडरस्टूड द टर्म कंट्रीब्यूशन? यार, जब भी एडिशनल यूनिट बनाता हूं फिक्स कॉस्ट तो होती नहीं है, मतलब कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट दोनों सेम है, और कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट दोनों सेम है, तो आई कैन टेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन ओनली. राइट डाउन सेकंड पॉइंट. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. एक मिनट, वेट, एक मिनट. आई थिंक आई हैव गिवन यू दैट इन द थियरी. Yes, look at this. Hey, एक मिनट रुको. Formulas you can write down in the textbook. Don't write anything now. Concentrate. Profit volume ratio, it's a rate at which profit is earned. It's a rate at which profit is earned. It's a rate at which profit is earned by every additional unit. It's a rate at which profit is earned by every additional unit. That means, can I say it is profit ratio of an additional unit? लिख दो टेक्स्ट बुक में. लिखा? इट्स अ प्रॉफिट रेशियो ऑफ एन एडिशनल यूनिट. अभी ध्यान से सुनना. प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर. मैं ना दो स्ट्रक्चर निकाल के दिखाता हूं आपको. करंटली आई एम प्रोड्यूसिंग 5,000 यूनिट्स, देन आई विल प्रोड्यूस 6,000 यूनिट्स. चलो एक और दिखा देता हूं. एंड देन आई एम प्रोड्यूसिंग 8,000 यूनिट्स. बराबर? आपको याद है सेलिंग प्राइस कितनी है? 10. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6, कंट्रीब्यूशन 4, फिक्स कॉस्ट 15. आई होप यू रिकलेक्ट दिस. तो सेल्स होगा एट द रेट ऑफ 10. सेल्स होगा एट द रेट ऑफ 10. Sales will be at the rate of 10. Variable cost will be at the rate of 6.
and contribution will be at the rate of 4. Am I right? Fixed cost is that cost which remains same irrespective of change in the quantity. So it will remain 15. So 5,000, 9,000, 17,000 is your profit. अब आइडियली हमको क्या सिखाया गया है? प्रॉफिट रेशो इज प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100. आइडियली हमको क्या सिखाया गया है? प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100. मेरा प्रॉफिट मेरा सेल्स अगर मैं कंसीडर करूं तो मुझे मिलता है 10%. ये प्रॉफिट और ये सेल्स कंसीडर किया 9,000 अपॉन 60,000 इंटू 100. 9,000 अपॉन 60,000 इंटू 100 तो मुझे मिलता है 15%. और अगर ये प्रॉफिट और ये सेल्स कंसीडर किया तो मुझे मिलता है व्हाट 21.25%. हाय दैया, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे चेंज हो रहा है तुम लोग का? प्रॉफिट अमाउंट चेंज होती है, ठीक है, यू कैन हैव अ वेरिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. गलती इसलिए हुई क्योंकि आपने डेफिनेशन को रिस्पेक्ट नहीं किया. व्हाट इज पीवी रेशियो? इट्स अ रेट एट विच प्रॉफिट इज अर्नड. It's a rate at which profit is earned by every additional unit. बाबू, हमने एडिशनल यूनिट का बात ही नहीं किया. 5,000 का 6,000, 6,000 का 8,000, एडिशनल क्वांटिटी 1,000 एंड 2,000. अब गौर से सेल्स को देखोगे तो आपको देखेगा 50 का 60 हो रहा है और 60 का 80 हो रहा है. वैसे भी 10 रुपया सेलिंग प्राइस थी तो 1,000 का 10,000 और 2,000 का 20,000 तो मिलना ही चाहिए बाबू. वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 6,000 एंड 12,000. 6 रुपया है तो यही होगा आपके साथ. तो नेचुरली कंट्रीब्यूशन इज 4. देख लो, 20,000 24,000 हो गया और 24,000 32,000 हो गया. 20,000 24,000 हो गया एंड 24,000 32,000 हो गया. फिक्स कॉस्ट है ही नहीं तो आपका प्रॉफिट भी 4,000 से बढ़ गया. इधर आपका प्रॉफिट 8,000 से बढ़ गया. समझ में आया? अब देखो, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 मतलब 4,000. किधर जा रहा है भाई? नीचे. मतलब 4,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 40% देगा. 8,000 अपॉन 20,000 इंटू 100 ये भी 40% देगा. तो जब एडिशनल यूनिट की बात करते हो तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 बराबर आंसर दे रहा है. कांस्टेंट रेशियो दे रहा है 40%, 40 दोनों साइड पे. लेकिन फिर काले वाले डेटा पे अप्लाई किया, मतलब बेस डेटा पे अप्लाई किया तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 सेम आंसर नहीं देता. लाल लाल डेटा पे अप्लाई किया, मतलब एडिशनल डेटा पे अप्लाई किया तो 40 40 40 40 टैली हो रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए ना. फॉर्मूला शुड बी समथिंग विच शुड बी परवेसिव, कॉमन, कांस्टेंट इन ऑल द सिचुएशन. बराबर. तो मैं क्या बोलता हूं, आप एडिशनल यूनिट का प्रॉफिट निकाल रहे हो. आप एडिशनल यूनिट का प्रॉफिट निकाल रहे हो और एडिशनल यूनिट का प्रॉफिट निकालने के लिए बांगडूज, एडिशनल यूनिट का प्रॉफिट निकालने के लिए लेट मी रिमाइंड यू, देयर विल नॉट बी एनी एडिशनल फिक्स कॉस्ट. एडिशनल यूनिट्स के लिए देयर विल नॉट बी एनी एडिशनल फिक्स कॉस्ट. और अगर एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं होगी तो आपका कंट्रीब्यूशन ही आपका प्रॉफिट होगा. आपका कंट्रीब्यूशन ही अगर आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 के बदले कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 कर लो, आंसर आ जाएगा. भरोसा नहीं ना मुझ पे? कोई बात नहीं, आदत है मुझे. देख लो, कंट्रीब्यूशन 20,000 अपॉन सेल्स इंटू 100 40%. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 40%. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 40%. करके देखो.
कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 करोगे तो भी आंसर आएगा। तो लाल वाले डेटा पे अप्लाई करो, काले वाले डेटा पे अप्लाई करो, बेस डेटा पे अप्लाई करो, एडिशनल डेटा पे अप्लाई करो, डजंट मैटर, परवाइल नहीं, 40% ही आएगा। ये छोड़, पर यूनिट पे अप्लाई करो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो भी पीवी रेशियो आएगा। ऐसा पीवी रेशियो कहां से निकाल लिया? सो दिस इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो। समझा क्या? चलो अब ये बटरफ्लाई समझ में आया क्या? ठीक है, एक और फॉर्मूला आ सकता है। व्हाट डिड यू डू? 4000 अपॉन 10,000, 8000 अपॉन 20,000। तो इसका एक इमरजेंसी एग्जिट फॉर्मूला है, डिफरेंस इन प्रॉफिट upon difference in sales into 100। ये भी कॉपी कर लो उधर इन द नोट्स। डिफरेंस इन प्रॉफिट्स अपॉन डिफरेंस इन सेल्स into 100। अरे इज दिस क्लियर? ये क्लियर है? ओके, अभी ध्यान से सुनना। अगर ये फॉर्मूला आपको कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 वाला फॉर्मूला आपको पीवी रेशियो देता है, तो फिर पीवी रेशियो को अगर मैं सेल्स से मल्टीप्लाई करूं और 100 से डिवाइड करूं तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाना चाहिए। हाय दैया, हाय दैया, क्या बोल दिया, हाय दैया। ओके, इधर अपना पीवी रेशियो कितना था? 40% था, बराबर है? अरे हाय ना, 40% था। चलो 50,000 का 40% 20,000 मिल रहा है, 60,000 का 40% 24 मिल रहा है, 80,000 का 40% 32 मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई? यहां तक के सेलिंग प्राइस का 40% भी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। इसका मतलब सेल्स, आप कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूला में वापस जाओ, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, ये एक और फॉर्मूला आएगा कंट्रीब्यूशन में, काइंडली राइट डाउन। इज इट डन? सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करोगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो करोगे तो भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा। I guess this format is clear, logically clear. Okay, break even point. Your third concept is break even point. एक मिनट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं कहीं और, so we can discuss it properly. हाँ जी, this is a data which we are considering. Break even point. What do you mean by break even point? Break even point मतलब no profit no loss. Break even point मतलब no profit no loss. No profit no loss का मतलब total cost is equal to total revenue. इसका मतलब मुझे यहां पे 0 चाहिए। अच्छा, is it possible to get 0 as profit or loss without recovering fixed cost of 15? नहीं।
मतलब मुझे 15,000 की फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के बाद जीरो लाना है। मुझे 15,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद जीरो लाना है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 15,000 होना चाहिए। अरे 15,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद जीरो लाना है, तो मुझे कंट्रीब्यूशन 15,000 होना चाहिए। अब एक यूनिट 4 रुपया कंट्रीब्यूशन देता है। मुझे अगर 15,000 कंट्रीब्यूशन कमाना है, मुझे अगर 15,000 कंट्रीब्यूशन कमाना है, तो 15,000 इंटू 4 3750 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस? इसको जीरो लाने के लिए 15,000 की फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी जरूरी है। 15,000 की फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है तो कंट्रीब्यूशन मेरा 15 ही होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन होगा 15,000, फिक्स कॉस्ट होगी 15,000, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब सोचो 15,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो कितने यूनिट्स बेचो, क्योंकि एक यूनिट मुझे 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन देगा। तो 15,000 कमाने के लिए आई नीड टू सेल 3750 यूनिट्स। हाँ या ना? करेक्ट? चेक करो, देख ले। 10 रुपीज के हिसाब से 37,500 आएगा। 6 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 3750, 22,500 आएगा। बराबरी बराबरी। अरे समझ में आया? सो 15,000 break even quantity, 15,000 is your fixed cost which you are trying to recover, and 4 is contribution per unit. So break even quantity is nothing but fixed cost upon contribution per unit. अच्छा, आपको ब्रेक इवन वैल्यू कैसे मिली? डोंट राइट। ब्रेक इवन क्वांटिटी आपने ली, ब्रेक इवन क्वांटिटी आपने ली, मल्टीप्लाइड बाय सेल्स पर यूनिट किया। ब्रेक इवन क्वांटिटी आपने ली, मल्टीप्लाइड बाय सेल्स पर यूनिट किया। हाँ या ना? ब्रेक इवन क्वांटिटी आपने ली, मल्टीप्लाइड बाय सेल्स पर यूनिट किया, तो आंसर आ जाता है 3750 मल्टीप्लाइड बाय 10। मैं क्या बोलता हूं, अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो हर बार ब्रेक इवन क्वांटिटी ढूंढनी पड़ेगी, चाहे मांगी हो चाहे नहीं मांगी। इवन इफ इट इज नॉट आस्क्ड, यू विल हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी देन मल्टीप्लाई बाय सेल्स पर यूनिट। आई हैव बेटर ऑप्शन। जस्ट यूज द फॉर्मूला that gives you quantity. Fixed cost upon contribution per unit. Take your calci. Fixed cost is 15,000. Fixed cost is 15,000 upon 4 into 10. Are you getting 37,500? अच्छा, मैं क्या बोलता हूं, ये छोड़, we don't even need per unit. ले लो कैल्सी, ले लो। 15,000 divided by contribution 20,000 multiplied by sales 50,000। आंसर कैलकुलेट करके देखो, सेम आएगा 37,500। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, इधर पर यूनिट लिया तो इधर भी पर यूनिट लेने का। ओए, समझ रहे हो? इधर पर यूनिट लिया तो इधर भी पर यूनिट लेने का। इधर अगर टोटल है तो इसका भी टोटल होगा। एक का टोटल, दूसरे का पर यूनिट। एक पाव रेल में, एक पाव जेल में, नहीं चलेगा। या तो दोनों पर यूनिट होने चाहिए या तो दोनों टोटल होने चाहिए। एंड
ये 1/2/3 कितना होता है? 1/2/3/4 नहीं, ये होगा 3/2। तो 3/2 को हाफ नहीं लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अरे सेम चीज को उल्टा किया रही। डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर बिकम्स अ न्यूमरेटर। और फरमाइएगा आधा भर से, डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर बिकम्स अ न्यूमरेटर एंड हियर न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर। माशाअल्लाह, क्या बात कह दी। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग। कैन आई राइट लाइक दिस? The numerator has become denominator of the denominator. Can I write like this? पहचान कौन यस, बहुत दुरुस्त फरमाए मोहतरमा। पीवी रेशो अब ले लो कैलसी। 15,000 पीवी रेशो 40% था। 15,000 अपॉन 40% करोगे तो भी 37,500 आ ही गया। समझ में आ रही है बात? चलो कॉपी कर लो ब्रेक इवन पॉइंट। नोटबुक में कॉपी करोगे चलेगा, टेक्स्ट बुक में शायद जगह नहीं होगी। एक फॉर्मूला क्वांटिटी का दो फॉर्मूलाज वैल्यू के, एक फॉर्मूला क्वांटिटी का दो फॉर्मूलाज वैल्यू के। ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ठीक है, चलो ब्रेक इवन पॉइंट का फायदा क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट मींस यू रिकवर योर एंटायर कॉस्ट। मतलब कैन आई से द मोमेंट आई प्रोड्यूस 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, 250, 500, 700, आई एम नॉट सेफ, आई एम स्टिल गेटिंग लॉस। जैसे ही मैं 37,500 पे पहुंच जाता हूं, जैसे मैं पहुंच जाता हूं 3750 पे, आई रिकवर माई एंटायर कॉस्ट। सो 3750 के ऊपर मुझे मिलना शुरू होगा प्रॉफिट। 3750 के ऊपर मुझे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, हां या ना? करंटली आई एम एट द लेवल ऑफ, करंटली आई एम हियर 5,000 यूनिट्स बेच के बैठा हूं। हाउ मच इज माई बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट? हाउ मच इज माई बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट? 3750। मेरी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट 3750 है। मैं 5,000 बना के बेच के बैठा हूं। बाय व्हाट मार्जिन आई एम सेफ? कितना ज्यादा बना के बैठा हूं? 1250। दैट इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। That is called as margin of safety. The quantity by which I am safe is margin of safety. The quantity by which I am safe is my margin of safety. The quantity by which I am safe is my margin of safety. Is that part clear? तो कैसे मिला? 5,000 minus 3750. So actual sales माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये किया ना हमने। सुनो, रुपीज में ढूंढते। माई बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 37,500। 37,500 किसी भी कीमत में मुझे कमाना है। मैं कमा के बैठा हूं 50,000 रुपीज। बाय व्हाट मार्जिन आई एम सेफ? सेम कैलकुलेशन 12,500। क्वांटिटी वाला किस कैलकुलेशन करोगे तो 1250, वैल्यू वाला कैलकुलेशन करोगे तो 12,500। अबे लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही है ना, क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू, फॉर क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू, फॉर क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू, फॉर क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। कॉपी कर लो।
एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा बाय व्हाट मार्जिन आर यू सेफ। ओके, अभी एक और इंपॉर्टेंट बात, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ना एक और सेट ऑफ फॉर्मूलाज है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन शब्द के दो मतलब होते हैं, एक होता है डिफरेंस। मार्जिन शब्द के दो मतलब होते हैं, एक होता है डिफरेंस और दूसरा होता है प्रॉफिट। कितने मार्जिन से जीते हम लोग मैच, तो दो टीम का स्कोर का डिफरेंस बताओगे मुझे। तो मार्जिन का मतलब डिफरेंस, मार्जिन का मतलब डिफरेंस, बराबर। मार्जिन का दूसरा मतलब होता है प्रॉफिट। डिफरेंस वाला फॉर्मूला हमने देख लिया। एक मिनट, हाँ, मार्जिन का मतलब होता है डिफरेंस, मार्जिन का मतलब होता है डिफरेंस, मार्जिन का दूसरा मतलब होता है प्रॉफिट। अब जरा प्रॉफिट को संभालते हैं, ध्यान से सुनना। ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरी 3750 है, 3750 पे मेरी पूरी कॉस्ट रिकवर होती है, मतलब 3750 के ऊपर फिक्स कॉस्ट नहीं होगी, बिकॉज माई एंटायर फिक्स कॉस्ट गेट्स रिकवर्ड एट द स्टेज ऑफ 3750। यस और नो? माई फिक्स कॉस्ट गेट्स रिकवर्ड एट 3750, yes or no? Yes. अभी ध्यान से सुनना। Each unit, one unit if I produce over and above 3750, one unit if I produce over and above 3750, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर एक यूनिट मैंने बनाया तो सीधा 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। प्रॉफिट भी 4 रुपया होगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो होगी नहीं। प्रॉफिट भी 4 रुपया होगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो होगी नहीं। इसका मतलब ब्रेक इवन के ऊपर, इसका मतलब ब्रेक इवन के ऊपर आपको एक यूनिट सीधा 4 रुपया प्रॉफिट देता है, आया ना? ब्रेक इवन के ऊपर एक यूनिट सीधा प्रॉफिट दे देता है। मुझे अगर 4 रुपया प्रॉफिट कमाना है, I must sell 1 unit above break even point. मुझे अगर 8 रुपया प्रॉफिट कमाना है, I should sell 2 units above break even point. मुझे 40 रुपया प्रॉफिट कमाना है, I should sell 10 units above break even point. अगर मुझे 100 रुपया प्रॉफिट कमाना है तो I must sell 25 units above break even point. और अगर मुझे 4000 रुपया प्रॉफिट कमाना है, I must sell 1000 यूनिट्स अबाव ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर मुझे 5000 का प्रॉफिट कमाना है, आई मस्ट सेल 1250 यूनिट्स अबाव ब्रेक इवन पॉइंट। वही आया ना? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड on the basis of क्या लिखता है भाई? On the basis of profit upon contribution per unit। अरे समझ में आया? 5000 का प्रॉफिट डिवाइडेड 4 पर यूनिट, 1250 यूनिट्स। तो इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट रिकवर्स कॉस्ट फॉर यू, break even point recovers cost for you and margin of safety gives you profit। इसीलिए break even plus margin of safety को actual sales मिलता है ऐड करने के बाद। नहीं समझे? Are you clear with it? 3750 कॉस्ट निकाल के देगा, 1250 प्रॉफिट दे रहा है। 3750 ने कॉस्ट निकाल के दी, मतलब वो तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। 1250 ने दिया सिर्फ प्योर शुद्ध प्रॉफिट,
तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। इसका मतलब टोटल 3750 प्लस 1250 आपको मिलेगा 5000। समझे के नहीं? गुड। तो फिर अभी वैल्यू कैसे निकालोगे? अरे कैसे निकालेंगे मतलब क्या? प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, या फिर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस। कितना सिंपल है पता चला? दोनों का बेस सेम ही है। इंजन से डब्बे बदलेंगे भाई। ब्रेक इवन में खाने के वांदे थे तो फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के बारे में सोच रहे थे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में प्रॉफिट। ब्रेक इवन में खाने के वांदे थे तो फिक्स कॉस्ट के बारे में सोचा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में प्रॉफिट कितने यूनिट्स की वजह से हो रहा है वो सोचा। तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, दोनों में सेम होगा। डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो भी दोनों में सेम होगा। समझ में आया? ये लिख लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। टू सेट ऑफ फॉर्मूलाज, वन is based on one definition, difference, actual sales minus break even sales, actual sales minus break even sales, whether it is quantity, whether it is amount. And what about the next one? Profit. मार्जिन का दूसरा नाम प्रॉफिट। मार्जिन का दूसरा नाम प्रॉफिट मतलब okay, so then profit upon contribution per unit will give you quantity and profit upon contribution into sales will give you value. You can also apply profit upon PV ratio if you want. चलिए 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 फटाफट 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 फटाफट। क्लियर है? Get the total, I mean, get it copied. Excuse me, sir. Yeah. So can you please increase your volume? Okay. Is it audible? Am I audible now? Is the voice proper now? मतलब कुछ क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा हो रहा है या क्या? 5-7 मिनट में मैं बदल रहा हूं माइक। आई एम चेंजिंग द माइक, बट तब तक वेट करने से अच्छा विल कंटिन्यू, ये बोल रहा था मैं। अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो आई विल नॉट कंटिन्यू। सुनाई दे रहा है but please. ओके, मैं काम करता हूं, आई जस्ट कंटिन्यू। नहीं सुना, इफ यू वांट मी टू रिपीट समथिंग जस्ट लेट मी नो, तब तक वो माइक आ जाएगा दूसरा। ओके, सो ये थियरी पॉइंट खत्म करके फिर हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तब तक वो माइक में चेंज कर देता हूं, ठीक है? चलिए, नाउ टेल मी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्लियरली समझा आपको? ओके, नाउ वी कैन यूज द सेम टेक्निक ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू डिसाइड प्रॉफिट टू बी अर्न्ड। मतलब अगर मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट माई, मुझे ना 18,000 का प्रॉफिट कमाना है। कितने का? तो ये भी प्लान कर सकता हूं मैं वेल इन एडवांस। कैसे? 18,000 का प्रॉफिट मुझे तब मिलेगा जब मैं 15,000 के फिक्स कॉस्ट रिकवर करूंगा। एम आई राइट? 18,000 का प्रॉफिट मुझे तब मिलेगा जब मैं 15,000 के फिक्स कॉस्ट रिकवर करूंगा, और दैट मीन्स माय कंट्रीब्यूशन आइडियली शुड बी 33,000। माय कंट्रीब्यूशन आइडियली शुड बी 33,000। सो 33,000 कंट्रीब्यूशन चाहिए। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इज ओनली 4। तो कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? Am I right? Yes. तो फिर 8250 बेचूंगा 10 रुपए में, तो 82,500 विल बी सेल्स।
If I sell 8250, if I produce 8250, 6 will be the variable cost per unit. How much it comes to? 59? 49. Okay. 49,500. So 33,000 is your contribution. This is all you wanted, because 33,000 contribution में से 15,000 के फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी, तो आपके पास बचेगी 18,000 की प्रॉफिट फिगर। मतलब आप लोग एक्चुअली सेल्स की क्वांटिटी भी डिटरमाइन करके रख सकते। रिक्वायर्ड सेल्स, हाउ टू डिसाइड क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड सेल्स, व्हाट डिड यू डू? 33,000 डिवाइडेड बाय 4 किया आपने। अब इसमें से 33,000 क्या है आपको अच्छे से पता है, इट्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 33,000 क्या है आपको अच्छी तरह से, सॉरी 4 क्या है आपको अच्छी तरह से पता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 33,000 was my fixed cost of 15 and required profit, ये न्यूमरेटर था, समझा? In order to earn this profit, I must recover this fixed cost. In order to earn this profit, I want to recover the fixed cost. So, अगर required sales की वैल्यू निकालनी है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। डन। You can copy this in the notebook. You can also decide the desired level of sales by applying this. Is it done? Have you clearly understood the whole calculation? Are you logically clear with the formulas? Okay, बच्चा लोग, can you hear me? आवाज अब ठीक है क्या? उनिशा, सोनाली, हर्षिता, श्रेया, आवाज नहीं आ रही है ना? म्यूट पे बोल रहे हो, ये इधर एडजस्ट करने को बोलो। अरे जल्दी बताओ भाई, आवाज लो नहीं है ना? चलो, सो वी हैव गॉट ऑल दिस फॉर्मूलाज, हम लोग ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर क्वेश्चंस। मैंने ना अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस उठाए, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स एंड सेल्स टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 2,40,000 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अच्छा, मांगा बहुत कुछ है, दिया कुछ भी नहीं। 2 साल का सेल्स, 2 साल की कॉस्ट, क्वांटिटी। मैंने आपसे पीवी रेशियो में कुछ कहा था, एक स्पेशल फॉर्मूला है अपने पास, याद आया? अब ऐसा जब होगा तो आपके पास एक ही तरीका है सॉल्यूशन देने का। इफ दिस हैपेंस यू विल हैव ओनली वन वे आउट। मेरी बात को ध्यान से सुनना गाइज। इफ योर sales is 30 lakhs, total cost is 27 lakhs, that means your profit must be 3 lakhs. Yes or no? And in case of second year, 36 lakhs के sales के सामने अगर आपका 31.8 lakhs का cost दिख रहा है तो 4.8 lakhs आएगा, 4.2 lakhs आएगा प्रॉफिट।
अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, यूज इमरजेंसी एग्जिट फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो। डिफरेंस in profits upon difference in sales. Difference in profit upon difference in sales. So guys, 4,20,000 minus 3 lakhs, ये होगा मेरा डिफरेंस इन प्रॉफिट, एंड 36 lakhs minus 30 lakhs, $1,20,000 का प्रॉफिट बढ़ा क्योंकि 6 लाख से सेल्स बढ़ा। सो गाइज, योर पीवी रेशियो is 20%. Have you understood this? Difference in sales 6 lakh, difference in profit 1,20,000, difference in sales 6 lakhs, difference in profit 1,20,000, तो 20% पीवी रेशियो आया। इसके बाद since you already know PV ratio, we will use available sales and newly found PV ratio for calculating contribution. कोई भी एक सेल्स ले लो, मैंने 30 लाख वाला ले लिया, 30 lakhs into 20% gives you 6 lakhs. तो जब 30 लाख का सेल्स था, कंट्रीब्यूशन आपका 6 lakhs था। तो अब कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट को बेस बना सकते हैं हम लोग। 6 lakhs was the contribution, fixed cost was unknown, लेकिन 30 lakhs का जब मैंने सेल्स लिया था, मेरा प्रॉफिट 3 लाख था। तो इसका मतलब मेरे लिए फिक्स कॉस्ट होगी 3 lakhs। अरे ये समझा क्लियरली? अरे बोलो बिन्नू। यस, अगर हमने 36 lakhs लिया होता तो क्या होता? कैलसी ले लो। 36 lakhs इंटू 20% मुझे दे देता 7,20,000। 36 lakhs इंटू 20% मुझे दे देता 7,20,000। 7,20,000 में से 4,20,000 का प्रॉफिट माइनस करता तो भी फिक्स कॉस्ट 3 लाख ही मिलती। बात समझ में आई? कुछ भी कर लो, आंसर सेम रहेगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज भी निकाल सकते हैं हम लोग, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। योर कंट्रीब्यूशन वाज 6 lakhs. Your contribution was 6 lakhs when your quantity was, your contribution was 6 lakhs when your sales was 30 lakhs. And your sales was 30 lakhs with a quantity of 1 lakh units. मतलब हमको जो contribution मिला है ये 1 lakh units का होगा। That means guys, in this question तो we have contribution per unit as well. क्या नहीं है तुम्हारे पास? सब कुछ है। You have fixed cost, you have contribution per unit, you also have PV ratio, 2 साल का प्रॉफिट भी है, जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकते। इन लोगों ने क्या मांगा है? They have simply said break even point. They have said break even point. Break even point में क्वांटिटी होती है, वैल्यू होती है। If they say break even quantity, calculate only quantity.
If they say break even value, calculate only value. If they say nothing, calculate nothing. नहीं. If they say nothing, you better calculate both. क्वांटिटी बोला तो क्वांटिटी देने का, वैल्यू बोला तो वैल्यू देने का, दोनों नहीं बोला तो अभी कुछ नहीं बोला तो दोनों देके आने का. सो ब्रेक इवन क्वांटिटी के लिए आई एम गोइंग फर्स्ट fixed cost upon contribution per unit. I have fixed cost 3 lakhs. I have contribution per unit 6. So I have 50,000 units. I have 50,000 units. Yes or no? As break even point. अब ब्रेक इवन वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसी 50,000 को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो भी कर सकते हो. चॉइस इज योर्स. 3 लाख की फिक्स कॉस्ट, 3 लाख की फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 20%, कितना आ रहा है? 15 lakhs. I hope this part is absolutely crystal clear. They have also asked us margin of safety quantity. Now your margin of safety quantity can be actual sales minus break-even sales, or it can even be profit upon contribution per unit. बट मेरी बात को अच्छे से समझो बच्चा लोग. आपको 2 साल की क्वांटिटी दी है बाबू, दोनों साल आपका प्रॉफिट अलग अलग है, तो दोनों साल आपकी क्वांटिटी दोनों साल आपकी क्वांटिटी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अलग होगी. नहीं समझे? आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग. इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, एंड इफ आई हैव 2 different profit figures, if margin of safety is based on profits, and if there are 2 different profit figures, नेचुरली मार्जिन भी बढ़ेगी. अरे प्रॉफिट बढ़ेगा तो सेफ्टी मार्जिन भी तो बढ़ती है. तो कितना है प्रॉफिट बाबा? फर्स्ट ईयर में 3 lakhs. ओके, तो फर्स्ट ईयर में 3 lakhs, नेक्स्ट ईयर में 4,20,000. यू गाइज ऑलरेडी हैव कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 6 रुपया. You have contribution per unit available 6. Oh my God, that means it is 50,000 units and it is 70,000 units. Isn't it logical? थोड़ा सा दिमाग जो है, सॉरी, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करके देखो. सॉरी, आपकी फर्स्ट ईयर की क्वांटिटी 1 लाख, आपकी फर्स्ट ईयर की क्वांटिटी 1 लाख, आपका ब्रेक इवन पॉइंट 50,000. ब्रेक इवन पॉइंट इज 50,000, यू आर एट 1 लाख, सो मार्जिन इज 50,000. लेकिन आपकी सेकेंड ईयर की क्वांटिटी 1,20,000 है, ब्रेक इवन विल स्टिल बी 50,000. तो नेचुरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी 70. अरे समझा? तूने फिक्स कॉस्ट के लिए ऐसा नहीं किया, उसका एक ही अमाउंट निकाल के छोड़ दिया, इसका तू 2 निकालता है. बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट. 2 प्रॉफिट होंगे तो 2 सेफ्टी मार्जिन होंगे. ब्रेक इवन इज बेस्ड ऑन फिक्स कॉस्ट. एक ही फिक्स कॉस्ट है दोनों साल के लिए, पीवी रेशियो दोनों साल के लिए, तो ब्रेक इवन सेम ही होगा ना. नाउ जस्ट लाइक क्वांटिटी, हे बांगडूज, जस्ट लाइक क्वांटिटी, वैल्यू के भी 2 आंसर्स. ईयर 1
3 लाख का प्रॉफिट अपॉन 20%, रुपीज 15 lakhs. रुपीज 15 lakhs. ईयर 2 4,20,000 का प्रॉफिट अपॉन 20%, 21 lakhs. वैसे भी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स करके देखो, आपको वही मिलेगा. ब्रेक इवन पॉइंट इज सेट कांस्टेंट एट 15 lakhs. अगर आपने 30 lakhs का सेल्स रिकॉर्ड किया है तो 30 lakhs माइनस 15 lakhs 15 लाख ब्रेक इवन पॉइंट, और 36 lakhs माइनस 15 लाख 36 lakhs माइनस 15 लाख ब्रेक इवन पॉइंट 21 lakhs आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा. समझ में आया? राइट डाउन अ नोट, प्लीज राइट डाउन अ नोट. Since margin of safety is based on profit, multiple profit figures will have multiple margins. Since margin of safety is based on profit, multiple profit figures will have multiple margins. Break-even point is always constant as fixed cost and PV ratio don't change. समझ में आया? This was the most important point. Since margin of safety is based on profit, multiple profit figures will have multiple margins. Break even point will always be constant because fixed cost PV ratio दोनों same रहता है. It won't change. Fixed cost and PV ratio don't change. याद रहेगा ये point? अच्छा, इन्होंने और भी कुछ मांगा है. रिक्वायर्ड प्रॉफिट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 2,40,000. 2,40,000 कमाने के लिए कितना प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा पूछते हैं ये लोग. मतलब रिक्वायर्ड सेल्स ढूंढना पड़ेगा हमको. रिक्वायर्ड सेल्स मतलब बॉस सबसे पहले हमको फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी पड़ेगी, फिर हमको रिक्वायर्ड प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा. तो बॉस 3 lakhs की मेरी फिक्स कॉस्ट है, वो रिकवर करने के बाद 2,40,000 का अगर प्रॉफिट चाहिए तो 6 पर यूनिट के हिसाब से. हाँ बाबू, 6 पर यूनिट के हिसाब से कितनी होनी चाहिए क्वांटिटी? 90,000 यूनिट्स. बात समझ रहे हो? अब अगर मुझे रिक्वायर्ड सेल्स वैल्यू में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो करना पड़ेगा. $3 lakhs, 2,40,000 का प्रॉफिट चाहिए अपॉन पीवी रेशो. बोलिए. 27 lakhs. आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया?
सब में एक एक आंसर आएगा। ब्रेक इवन क्वांटिटी एक आंसर, ब्रेक इवन वैल्यू एक आंसर, रिक्वायर्ड सेल्स एक आंसर। अरे एक ही प्रॉफिट फिगर चाहिए तो एक ही क्वांटिटी होगी। ओनली मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल हैव मल्टीपल आंसर्स बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन because margin of safety is based on profits and multiple profits will have multiple margins. जितना प्रॉफिट बदलेगा उतनी सेफ्टी मार्जिन बदलेगी। अरे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया तो मेरी सेफ्टी बढ़ गई न रे, और मेरा प्रॉफिट कम हो गया तो मेरी सेफ्टी कम हो गई न रे। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। क्या मांगा था क्वेश्चन में हमने को मिल गया। ब्रेक इवन सेल्स हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया, सेल्स टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 2,40,000 हो गया। ये एक सम सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आया होगा कि वो जो पीवी रेशियो का जो स्पेशल फॉर्मूला हमने डिस्कस किया वो स्पेशल सिचुएशन में ही काम आता है। इफ यू डू नॉट नो दैट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100, फॉरगेट अबाउट सॉल्विंग द सॉल्यूशन, यू विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड प्रोसीजर, difference in profit upon difference in sales will give you PV ratio. Use that PV ratio, apply on any one of the sales figures. You will get contribution of that period. From that contribution, subtract profit of that same period to get a fixed cost. And then the entire solution will be yours. Whatever you want, you can get it. जो चाहिए वो calculate कर सकते। I hope this is clear, बच्चा लोग। Yes, sir. Absolutely. चलो